أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سورة القيامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى مآذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق سورة القيامة مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس صورت مبارک کا نام پہلی ہی آیت کریمہ سے لیا گیا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ 2 رکوع ہیں اور 40 آیات کریمات ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو صادق الامین تو مانتے ہی تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا کا معنی نہیں، جو تم کہتے ہو وہ نہیں، جو تم قیامت میں شک کرتے ہو وہ نہیں ہے۔ اقسم بیوم القیامہ میں قسم کھاتا ہوں، تم تو انکار کرتے ہو یا شک کرتے ہو، لیکن میں تو قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میرے بارے میں تم جانتے ہی ہو اور اس بات کا اقرار کرتے ہو، گواہی دیتے ہو کہ آپ صادق الامین ہیں۔ تو جب مجھے صادق الامین مانتے ہو تو تمہاری بات غلط ہے۔ لا الگ ہے اور اقسم الگ ہے، ان دونوں الفاظ کو الگ الگ رکھنا ہے۔ پہلا جو ہے لا ان کفار کے اور مشرکین کے عقیدے کی نفی ہے، نہیں جو تم کہتے ہو وہ نہیں ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی کہ آئے گی قیامت۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے
نفس کی قسم کھاتا ہوں، اللوامہ ملامت کرنے والا زیادہ۔ تو انسان کے اندر کی بھی ایک آواز ہوتی ہے، جب انسان غلط کرتا ہے تو اندر سے ضمیر بولتا ہے، ضمیر کی آواز، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ قرآن کریم میں 3 قسم کے نفوس کا تذکرہ ہے۔ ایک ہے نفس امارہ جو سورہ یوسف کے اندر ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53، نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، یہ ایک قسم ہے نفس کی۔ اور دوسرا جو انسان کو برائی پہ ملامت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر کی آواز، النفس اللوامہ، یہ دوسری قسم ہے ملامت کرنے والا۔ اور تیسری قسم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک نفسا مطمئنہ، اے پاک پروردگار ہم آپ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتے ہیں۔ تو کل 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ یہ سب سے اچھا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہے۔ اور حدیث مبارک میں ہے ورضا بما قسم اللہ لک، اللہ تعالیٰ نے جو تیرے لیے تقسیم کیا ہے، جو تیرے نصیبوں میں لکھا ہے اس پر راضی ہو جا، تکن اغنی الناس، ساری دنیا سے زیادہ مالدار تو ہی ہوگا جب راضی ہوگا کہ اللہ پاک نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے دیا ہے، جو دوسروں کے نصیب میں لکھا ہے وہ ان کو دیا ہے، اس پر راضی ہو جائیں۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ تو جب یہ مل جائے تو سمجھیں کہ دنیا بھی بہتر ہو گئی، آخرت بھی بہتر ہو گئی، اور ساری دنیا سے زیادہ مالدار یہ شخص ہے جس کو نفس مطمئنہ مل گیا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے، ہڈیاں اس کی اکٹھی نہیں کریں گے۔ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے۔ قادرین، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں، علی، اس بات پر، ان نسوی بنانا، کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بنانا یہ جوڑ، پور انگلیوں کے۔ تو جس طرح آپ بھائی جانتے ہو کہ فنگر پرنٹ ہے، ہر انسان کے انگوٹھے کا جو نشان ہے وہ الگ ہے، شناختی کارڈ ہے، موبائل سم ہے، ایئرپورٹ ہے، جہاں بھی جائیں وہاں فنگر پرنٹ ہے، ہر انسان کا مختلف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جو انسان کے فنگر پرنٹ ہیں وہ دوبارہ جب ہم پیدا کریں گے تو اسی طرح ہی بنا دیں گے، ہر انسان کے الگ الگ۔ ہم تو اس بات پر قادر ہیں، الا ان نسوی بنانا، کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ حدیث مبارک میں صحیح بخاری شریف میں بڑا مشہور واقعہ ہے، کئی مرتبہ عرض کیا گیا، حدیث نمبر 3481، کہ ایک آدمی کا ذکر ہے جس کے بیٹوں نے اس کے کہنے کے مطابق اسے مرنے کے بعد جلا کر
और हड्डियों को पीस कर कुछ राख हवा में उड़ा दी और कुछ पानी में बहा दी, तो अल्लाह ताला ने हवा और पानी को हुक्म देकर उसके जर्रात इकट्ठे करके उसे दोबारा जिंदा कर दिया, दोबारा उसी तरह पहली हालत में। बल युरीदुल इंसानु लियफ्जुरा अमामा, इस आयत करीमा में असल वजह बताई है कि क़यामत का इनकार इंसान क्यों करता है। बल्कि युरीदुल इंसान, इंसान चाहता है लियफ्जुरा अमामा, कि अपने आगे आने वाले दिनों में नाफरमानी करता रहे। लियफ्जुरा, नाफरमानी करता रहे, अमामा, अपने आगे, आइंदा आने वाले दिनों में। क़यामत का इनकार इसलिए करता है ताकि वो शुतर बेमुहार बन जाए। अगर क़यामत पर ईमान ले आए तो उसका तो तकाजा है कि गुनाह छोड़ दे। अब गुनाह छोड़ने पर वो आमादा नहीं, राजी नहीं, तो इसलिए कहता है चलो क़यामत का इनकार ही कर देते हैं। तो क़यामत के दिन का इनकार, इसका सबब ये है लियफ्जुरा अमामा, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में नाफरमानी करता रहे। यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामा, वो पूछता है कब है खड़े होने का दिन, यौमुल क़ियामा, क़यामत का दिन कब है। तो उसके पूछने का सबब ये नहीं है कि उसकी मालूम तारीख हो जाए, दिन का पता चल जाए तो मैं उसकी तैयारी कर लूं। सवाल इसलिए करता है कि इनकार करूं, इनकार के लिए सवाल करता है। अल्लाह ताला ने फिर उसका भी बयान फरमा दिया। अजीज भाइयों, कुरान मजीद की जो इबारत है ये अल्लाह ताला के खुतबात हैं, खुतबात इलाही। खुतबात की किताबें होती हैं ना, मुख्तलिफ उलमाए किराम की खुतबात, तो कुरान मजीद खुतबात इलाही, अल्लाह ताला के खिताबात। जिस तरह सूरह अर्रहमान है उसका पढ़ने का मखसूस एक अंदाज है, इसी तरह ये सूरत अल क़ियामा है। आप देखें शुरू से अल क़ियामा, अल-लव्वामा, इज़ामा, बनाना, अमामा, यौमुल क़ियामा। अब यहां तक 6 आयतें हैं, इनका अंदाज एक जैसा है। इससे आगे आयात करीमात का अंदाज पहले से मुख्तलिफ है और बदल जाता है। फ़इज़ा बरिक़ल बसर, जब आंख पथरा जाएगी, बारिक़ा, पथरा जाएगी, यानी क़यामत के दिन अजीब व गरीब हवादिस व वाक़यात देखकर आंख पथरा जाएगी। व खसफल कमर, और चांद को ग्रहण लग जाएगा, चांद बेनूर हो जाएगा। व जुमिअ शम्स वल कमर, और सूरज और चांद इकट्ठे कर दिए जाएंगे, जुमिआ, इकट्ठे किए जाएंगे। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र, कहेगा इंसान उस दिन कहाँ है भागने की जगह। अल मफर, भागने की जगह। कल्ला ला वज़र, हरगिज़ नहीं, ला वज़र, पनाह की जगह कोई नहीं, ला वज़रा, नहीं कोई पनाह की जगह। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, उस दिन तेरे रब ही की तरफ जा ठहरना है। अल मुस्तक़र, ठिकाना। अब ये जो आयात करीमात हैं इनका अंदाज पहले 6 आयात से मुख्तलिफ है। अल बसर, अल कमर, अल कमर, अल मफर, वज़र, अल मुस्तक़र। इस तरह जिस तरह सूरत रहमान की तिलावत करते हुए अजीब खुशी महसूस की जाती है, इसी तरह ये सूरत अल क़ियामा है। अल्लाह पाक ने सूरत इब्राहीम के अंदर बयान फरमाया,
वला तहसबन्न अल्लाह गाफिला, अल्लाह ताला को गाफिल न समझो, अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून, उस बात से जो जालिम करते हैं, इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, अल्लाह ताला मोहलत देता है, लियौमिन, उस दिन के लिए, तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, जिसमें आंखें खुली रह जाएंगी, मुहतिईना मुक़निई रुऊसिहिम, दौड़ते हुए अपने सरों को उठाए हुए, ला यर्तद्दु इलैहिम तरफ़ुहुम व अफ़इदतुहुम हवा, हाल ये होगा कि सर उठाए हुए तेज भाग रहे हैं, उनकी निगाहें उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगी और उनके दिल खाली हो जाएंगे। सूरत इब्राहिम हदीस मुबारक में है, प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस है, अश-शम्सु वल क़मर मुक़व्वरान यौमल क़ियामह, सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 3200। क़यामत के दिन सूरज और चांद लपेटे हुए होंगे, मुक़व्वरान, लपेट दिया जाएगा, जैसे यहाँ फरमाया आयत नंबर 9 में, वजुमिअ शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, ला वज़र, नहीं कोई पनाहगाह, तेरे रब की तरफ ही उस दिन ठिकाना है। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र, यौमइज़िन, जाल के नीचे आप देखें छोटी सी मीम लिखी हुई है, इसको कहते हैं इक़लाब। इक़लाब के नूने तनवीन जो है वो तब्दील होके मीम बन गया है, अब पढ़ने में मीम आएगी, यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र, जब नून के बाद बा आ जाए तो इक़लाब हो जाता है, वो मीम से तब्दील हो जाता है। उस दिन इंसान को बताया जाएगा, बिमा क़द्दमा, जो उसने आगे भेजा, व अख़्ख़रा, और जो पीछे छोड़ा। इस आयत करीमा की कई तफसीरें हैं। एक तफसीर तो ये है, बिमा क़द्दमा, जो उसने आगे भेजा, वो नेकी जो अपने वक़्त पर करता रहा, सही वक़्त पर, वो तो हो गया बिमा क़द्दमा। और दूसरी वो नेकी है जो लेट करके, मसलन नमाज कज़ा करके पढ़ता रहा, अख़्ख़रा, जो पीछे छोड़ा, ये एक तफसीर है। और दूसरी तफसीर इस आयत करीमा की कि कुछ अमाल ऐसे हैं जो इंसान अपनी जिंदगी में करता है, वो हो गया बिमा क़द्दमा, और कुछ वो हैं व अख़्ख़रा, जो सदका जारिया के तौर पर दुनिया में छोड़ जाता है। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलासा, जब इंसान फौत होता है तो उसका अमल मुनक़ते हो जाता है, मगर 3 अमल जारी रहते हैं, सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु, सदक़ाए जारिया, वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, और साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे। अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1631। इसी तरह प्यारे रसूल की प्यारी हदीस है, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फ़उमिला बिहा बादहु कुतिबा लहु मिस्लु अज्र मन अमिला बिहा वला यनकुसु मिन उजूरिहिम शैउन, जो आदमी इस्लाम में कोई अच्छा तरीका जारी करे, फिर उसके बाद उस तरीके पर अमल किया जाए, तो उसके लिए उन लोगों की मिसल अजर लिखा जाएगा जो उस पर अमल करेंगे, और उनके सवाब से भी कुछ कम नहीं होगा। और जो शख्स इस्लाम में कोई बुरा तरीका जारी करे,
फिर उसके बाद उस पर अमल किया जाए तो उस पर उन लोगों के गुनाह की मिसल लिखा जाएगा जो उस पर अमल करेंगे, और उनके गुनाह में से भी कुछ कम नहीं होगा। अपने घर में कोई नेकी का सामान छोड़ के फौत हो गया तो सदका जारिया है, और अगर कोई बेहयाई का सामान छोड़कर अपने घर में ही फौत हो जाता है तो मुसलसल उसे गुनाह पहुंचता रहता है। दुनिया से चला गया, मर गया, लेकिन सामाने बेहयाई अपने घर में छोड़कर मरा है। बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, बल्कि इंसान अपने आप को खूब देखने वाला है। किसी के बताने के बगैर भी इंसान को पता चल जाता है मेरे नामा अमाल में क्या सूरत हाल है। अला नफ्सिही बसीरा, अपने आप को खूब देखने वाला है। वलौ अलका माजीरा, अगरचे वो अपने बहाने पेश करे, माजीरा एक्सक्यूज मी, ये इंग्लिश का जुमला, तो जितनी चाहे वो उज़र और माजरत पेश करे, लेकिन वो खुद जानता है कि मेरे अमाल नामे में क्या लिखा है। अला नफ्सिही बसीरा। अब यहां पर जो आयात करीमात हैं इनका अंदाज एक जैसा था। अल बसर अल कमर वल कमर अल मफर वजर अल मुस्तकर अखर। अब इससे आगे आयात करीमात का अंदाज फिर तब्दील हो गया है। बसीरा माजीरा लेताजला बिह कुरआना बयाना, ये अंदाज तीसरे तरीके से आ गया है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की तौफीक से जब इस आयत करीमा की तिलावत करेंगे तो निहायत खुशी के साथ पढ़ेंगे। अंदाज ही अल्लाह पाक ने ऐसा प्यारा बनाया है। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बिह इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना। यहां से मजमून तब्दील हो गया है। पहले तो मजमून था क़यामत का और आखिरत का, यहां से मजमून बिल्कुल तब्दील हो गया है। और प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सीरत का एक वाक़या यहाँ पे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। हदीस पाक में आता है, सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रावी हैं कि जब कुरान करीम नाज़िल होता, हजरत जिब्रील तिलावत करते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन ही हजरत जिब्रील के साथ ही पढ़ना शुरू कर देते, तो इससे मुश्किल पेश आती। अल्लाह पाक ने इस बात से मना फरमा दिया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका, आप अपनी जुबान मुबारक को हरकत ना दें, बल्कि सुनते रहें। हजरत जिब्रील पढ़ते रहें, आप सुनते रहें। जब जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तिलावत मुकम्मल करें फिर आप पढ़ें, तो जो आपको खतरा था कि कहीं कोई आयत कोई लफ्ज भूल ना जाऊं, फरमाया अल्लाह पाक ने ये हमारी जिम्मेदारी है कि सारी तिलावत हम आपकी जुबान मुबारक पर जारी और सारी करेंगे। फिर इससे आगे अल्लाह पाक ने एक अगला वादा फरमा लिया कि कुरान पाक की जो तफसीर है वो भी हम ही बयान करेंगे। अल्लाह पाक ने तफसीर का भी वादा फरमा लिया और दो तरीकों से कुरान मजीद की तफसीर बयान फरमाई। एक तरीका अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान मजीद ही एक आयत दूसरी आयत की तफसीर कर देती है। ये तो तफसीर हो गई कुरान मजीद की कुरान करीम के साथ ही, और दूसरा तरीका तफसीर का वो हदीस के साथ है। कुरान मजीद में एक हुक्म आएगा, नमाज पढ़ो, नमाजों की औकात और उसकी रखतें वो सारी अहादीस में आएंगी। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की तफसीर का दो तरीकों से वादा कर लिया। अजीज भाइयों, जब आप इस सूरह मुबारक की तिलावत करें, जब इस आयत पर पहुंचे इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना,
ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। आयत नंबर 16, 17, 18, 19 फौरन आप समझ जाएं कि मौजू बिल्कुल तब्दील हो गया है, बात उन्वान अलग हो गई है। तो ये जो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की हदीस है, सही बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 5, शुरू में आप अपनी जुबान को हरकत ना दें, लिताजल बिही, ताकि उसे जल्दी हासिल कर ले। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, बिला शुबा इसको जमा करना और आपका इसको पढ़ना हमारे जिम्मे है, आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फैज़ा क़रअनाहु, तो जब हम उसे पढ़ लें, यानी हजरत जिब्रील जब अपनी तिलावत मुकम्मल कर लें, फत्तबि कुरआना, तो आप उनके पढ़ने की पैरवी करें, यानी बाद में पढ़ें, उस वक्त मत पढ़ें, बल्कि तवज्जो के साथ सुनते रहें। और इससे आगे अल्लाह ताला ने अगला वादा फरमा लिया, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर बिलाशुबा उसे वाज़े करना हमारे जिम्मा है। बयाना उसका बयान, उसकी तफसीर, और तफसीर दो तरीकों से, एक किताबुल्लाह के साथ और दूसरा हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला, हरगिज नहीं बल्कि तुम मोहब्बत करते हो, अल आजिला जल्दी से, जल्दी को पसंद करते हो। इंसान की फितरत में अल्लाह पाक ने जल्दबाजी रख दी है, हर काम तेजी के साथ करना चाहता है, हौसला नहीं है। तो अजीज भाइयों, अपनी तबीयत में ठहराव पैदा करें, हौसला, ठहराव के साथ, हौसले के साथ, इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारने का सलीका और तरीका सीखें। ये जल्दबाजी सड़कों पे और हर काम में तेजी अल्लाह पाक को पसंद नहीं, बल्कि ये शैतान की तरफ से है। जिंदगी में ठहराव और इत्मीनान और हौसला और तसल्ली और सुकून पैदा करें, बल्कि तुम पसंद करते हो अल आजिला, जल्दी को, जल्दी मिलने वाली चीज को। व तज़रून अल आखिरा, और बाद में आने वाली को छोड़ देते हो। दुनिया को पसंद करते हो, आजिला दुनिया, दुनिया से बड़ी मोहब्बत है, और आखिरत को छोड़ देते हो। अल्लाह ताला ने आखिरत के बारे में तवज्जो दिलाई कि उसके लिए भी हर इंसान तैयारी करे और दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत का भी फिक्र करता जाए। वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा व वजूह यौमइज़िन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी व क़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। वजूहुन, कुछ चेहरे ईमान वालों के, यौमइज़िन, उस दिन, नाज़िरा, तरो ताज़ा, हंसते मुस्कराते। और हदीस मुबारक में दुआ है प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, नज़्ज़र अल्लाह हुमरान, यही लफ्ज़ है, अल्लाह ताला उस आदमी का चेहरा तरो ताज़ा रखे, हंसता मुस्कराता रखे, खुश खुरम रखे, जो अल्लाह के नबी की हदीस सुनता है, फिर उसको याद करता है, फिर आगे सुनाता है। अजीज भाइयों, जो हदीस मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं ना, दुनिया में भी उनके चेहरे पे रौनक होती है, और जब फौत हो जाते हैं, वफात के बाद भी उनके चेहरे पे नूरानियत होती है। नाज़िरा,
ترو تازہ الا ربہا ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی کتاب کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔